हेलो बेटा सत श्री अकाल। सो लास्ट ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਐਕਸ ਤੇ ਵਾਈ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਦਾ ਰੂਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਕਿਸੇ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ज़्यादा डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਨੰਬਰ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈ ਸੀ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਕੁਅਲ ਵੈਕਟਰਸ। ਇਕੁਅਲ ਵੈਕਟਰਸ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਕੁਅਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਆ, ਹਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ देयर आर 5 मैंगोज एंड 5 बनानास, ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ द नंबर ऑफ द फ्रूट्स, 2 टाइप ऑफ फ्रूट्स इज इक्वल। ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕੁਅਲ ਵੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਰੋ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੋਵੇ ਇੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ, ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਰੋ ਹੈਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਐਰੋ ਹੈਡ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੈਕਟਰ ਸੇਮ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦਾ ਐਂਡ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬਟ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸੇਮ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਵੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੁਅਲ ਵੈਕਟਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੂ ਵੈਕਟਰਸ ਆਰ ਸੈਡ ਟੂ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਇਫ ਦੇ ਹੈਵ ਇਕੁਅਲ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਐਂਡ same direction, ठीक है। So if we represent this by a and this by b vector, then we will write that a and b are equal vectors. Done. So second thing है अपने को, second है negative vectors। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਹਨਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਅਗਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ। ਸੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜੇ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਏ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ, ਹੁਣ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਕਟਰ ਵਿਲ ਬੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ, ਇਕੁਅਲ ਵੈਕਟਰ ਸੀ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਸੇਮ ਹੈ ਬਟ ਸੇਮ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਐ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਬਟ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਰੋ ਹੈਡ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਦ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਵੈਕਟਰ ਵਿਲ ਬੀ ਓਪੋਜ਼ਿਟ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਐਟ ਦੀ ਐਂਗਲ ਆਫ 180, 180 ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆਰ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਡ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਇਜ਼ ਸੇਮ for two vectors, then these are called negative vector. So in the definition ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, a negative vector of a given vector is a vector of same magnitude but acting in a direction opposite to that of given vector. So ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ a ਲਿਖ ਲਓ, ਉੱਪਰਲੇ ਨੂੰ if a is this vector and b is the vector with the same magnitude and the opposite direction, then this direction, this vector b vector will be called negative vector. And the third है अपने को co-initial vector। अरे हाँ, this is important समझन ਲਈ है बस। पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਚ ਗੂਗਲੀ ਪਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੇਸਿਕ ਟੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ नीड टू मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, नीड टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली। सो को इनिशियल, ਹੁਣ को इनिशियल ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਮਝੋ, को इनिशियल। इनिशियल मतलब स्टार्ट हो ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, इनिशियल ਪੁਆਇੰਟ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਟੇਟ ਵੈਕਟਰ। ਸੋ ਆ ਏ ਵੈਕਟਰ ਲੈ ਲਿਆ। अगर इसे पॉइंट तो जिथों ए वैक्टर स्टार्ट होया कोई दूसरा वैक्टर स्टार्ट हुंदा, उपर नूं लगा लो, थल्ले नूं लगा लो, इधर नूं लगा लो, किसी पासे लगा लो,
ठीक है। तो जिन्हां दा इनिशिएशन पॉइंट ਜਾਂ स्टार्टिंग पॉइंट सेम है तो उन्हां वैक्टर्स नूं असीं बोलते हैं को इनिशियल वैक्टर। हुण मान लो भी आ वैक्टर मेरे को ए वैक्टर सीगा, आ वाला, इस नूं आपां लिख लैंदे आ बी वैक्टर, इनू आपां लिख लिया सी वैक्टर ते इनू लिख लिया डी वैक्टर। सो दीज 4 वैक्टर्स आर को इनिशियल वैक्टर्स। ठीक है, डेफिनेशन नूं लिख सकते हो, द वैक्टर्स आर सेड टू बी को इनिशियल इफ देयर इनिशियल पॉइंट इज कॉमन or if they are starting from same point, if they are starting from same point। done। सो कोई एंगल ते डायरेक्शन का इह चक्कर नहीं, नेचुरल जी गल है एक बेटा कि जदों भी वैक्टर को इनिशियल होणगे, नेचुरल जिहा कॉन्सैप्ट है, को इनिशियल होणगे इट मीनस कि वो एक दूजे दे पैरलल नहीं होणगे, दे विल बी एट सम एंगल। ठीक है, आ जिहड़ा एंगल है मेरे को किसी एंगल ते होणगे, क्योंकि जिहड़ियां चीज़ां पैरलल होंदियां वो किसी पॉइंट ते मिलदियां नहीं, जे किते मिलदियां नहीं सो इट मीनस कि दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग एट एनी पॉइंट। मैं जस्ट इंग्लिश बोलता हूँ, सो इंटरसेक्शन नहीं होंदी है ना, सो वो को इनिशियल कदे नहीं हो सकते। डन। सो नेक्स्ट है अपने कोल कोलीनियर वैक्टर्स। अच्छा, कोलीनियर वैक्टर्स दे विच हुण जिद्दां मैं इत्थे लिख लईए पहला को, ठीक है, लीनियर LINEAR कोलीनियर वैक्टर्स। हुण कोलीनियर वैक्टर की है, अज जिवें मैं समानांतर बना दित्तियां, पैरल लाइनस बनातियां। ठीक है, मैगनीट्यूड इन्हां दा जो मर्जी है, भावें आ हुण छोटी लाइन आ वड्डी लाइन है ना, सो मान लो अगेन आपां बना लैंदे आ ए वैक्टर बना लिया मैं कोई, सो अगर बी वैक्टर डायरेक्शन सेम है बेटा इन्हां दी बट मैगनीट्यूड डिफरेंट है, तो इदां दे वैक्टर्स नूं असीं कोलीनियर कह दिंदे हैं। ठीक है, राइट। नहीं, कोलीनियर ये अपने कोल पैरलल वैक्टर्स है। कोलीनियर दा मतलब की है, इत्थे को इनिशियल सी, ध्यान दिओ इस कन्फ्यूजन तो बचना है। को इनिशियल सी ना, एक पॉइंट तो स्टार्ट होना। कोलीनियर, लीनियर दा की मतलब होंदा लाइन। अगर मेरे कोल आ लाइन है, ठीक है, सो इस लाइन दे अलोंग दो वैक्टर्स ने सेम लाइन च पे, तो इन्हां नूं आपां कोलीनियर कहांगे। तुसीं इहदी डेफिनेशन लिख लो, दीज आर those vectors which are having equal and unequal magnitudes, ठीक है, and are acting along the parallel straight lines। ठीक है, तुसीं ऐ लिख लो, दूजा और along the same line भी हो सकता है, parallel भी हो सकता है। डन। सो इस कन्फ्यूजन तो बचना है, इनू प्ले आपां पैरलल भी बोल सकते हैं, कोलीनियर भी बोल सकते हैं। डन। जिहड़ा उस तो नेक्स्ट है अपने कोल दैट इज कोप्लेनर। इनू मान लो ए है, ए बी है, कोप्लेनर वैक्टर्स। हुण इहदा मतलब की है भी कोई भी वैक्टर जिहड़े एक प्लेन दे विच होण, हले तक आप जिन्ने भी वैक्टर बनाए है इत्थे एग्जाम्पल देने लई, ये सारे कोप्लेनर सी। क्यों? क्योंकि ये जिहड़ा तुहाडा ब्लैक बोर्ड दिख रहा तुहानूं, ये ब्लैक बोर्ड की स्क्रीन दे उत्ते है, ब्लैक बोर्ड के प्लेन च। ठीक है, अगर कोई वैक्टर जिद्दां आ हुण एक्स सी या वाई सी कोप्लेनर है, अगर वो Z एक्सिस वाल नूं मुड़ पैंदा तो तुहाडे ब्लैक बोर्ड तो बाहर नूं जाऊगा जां ब्लैक बोर्ड के अंदर नूं जाऊगा। ठीक है, डूंघाई च जाऊगा, सो वो अपने कोल कोप्लेनर नहीं रह जाऊगा। तुसीं इहदी डेफिनेशन लिख सकते हो, दीज आर दोज वैक्टर्स विच आर एक्टिंग इन सेम प्लेन। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जिद्दां मैं तुहानूं दस दित्ता कि यह सारा जो कुछ बनाया है कोप्लेनर ही है। इन्हां च आपां चलो पैरलल की गल कीती है, इंटरसैक्शन की गल कीती है। कोई भी वैक्टर मान लो आ ब्लैक बोर्ड है, इस मैं आर्बिट्रेरी कुछ भी बना देना, 1 2 3, ठीक है, 4, फिर मैं बना देना 5। हुण आ जिहड़े वक्खरे वक्खरे डायरैक्शन के मैं वैक्टर्स बनाए हैं, आ वाले 4 5, ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, डी मान लो, इनू ई कह लो, वी कैन सपोज। सो ये सारे वैक्टर की है, ये तुहाडे ब्लैक बोर्ड की स्क्रीन दे विच है, प्लेन दे विच है। सो इन्हां नूं तुसीं कोप्लेनर वैक्टर्स कह सकते हो। ठीक है, सो एक छोटी जी होर डेफिनेशन नाल लिख सकते हो तुसीं, लोकलाइज्ड वैक्टर। लोकलाइज्ड वैक्टर बेटा वो हुंदा है, तुसीं इदां लिख लो, whose initial points are fixed। मतलब जिद्दां आपां एक पॉइंट ते, लोकलाइज का मतलब हुंदा भी किसी एक पॉइंट दे नाल बजे हुए होना। जिद्दां आपां
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘਰੇ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਹੈਵ ਡੌਗਸ ਈਵਨ। ਸੋ ਡੌਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੰਗਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਗਲੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆਹ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡੌਗ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਚੇਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਡੌਗ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਚੇਨ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਏਰੀਆ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦਾ। ਆ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਐਂ ਕਹ ਲਓ ਸੰਗਲ ਦੀ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਡੌਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਇਸ ਸਰਕਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਡੌਗ ਇਜ਼ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ਡ ਟੂ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਫਿਕਸਡ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਫਿਕਸ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ਡ ਵੈਕਟਰ ਜਾਂ ਫਿਕਸਡ ਵੈਕਟਰਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾ ਫਿਕਸ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨੋਨ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ਡ ਵੈਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਰੀ ਵੈਕਟਰਸ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਟਰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਫਰੀ ਵੈਕਟਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਹੈਂਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਓ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਬਾय ए रियल नंबर, ठीक है। हाँ जी, सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वैक्टर बाय ए रियल नंबर, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲਾ ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਨੂੰ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇयर इज x, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੰਟੀਜਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2 3 4 5, ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 2 into x ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2x। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਡਬਲ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ x, ਹੈ ਨਾ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੈਕਟਰ a ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ, है ना, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 2 ਨਾਲ ਜਾਂ 3 ਨਾਲ, ਮੰਨ ਲਓ 2 ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 2a ਵੈਕਟਰ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 2a ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, 2 into a ਵੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2a ਵੈਕਟਰ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਣਾ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਆ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵੈਕਟਰ ਬਣਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿੱਦਾਂ ਆ a ਵੈਕਟਰ ਸੀ ਤੇ 2a ਵੈਕਟਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐ ਬਣਾ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ a ਫਿਰ ਫਰਦਰ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਗੇ ਲੈਂਥ, ਸੋ ਇਹ 2a ਬਣ ਗਿਆ 2a ਵੈਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ -2 ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, -2 into a ਵੈਕਟਰ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ -2a ਵੈਕਟਰ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਤੇ ਪਾ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਆ a ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ a ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ माइनस है ना, इट मीन्स के डायरेक्शन रिवर्स होगी, ठीक है। सो ए वैक्टर बन गया अपने को -2a वैक्टर। बस इन्नी एक गल समझने वाली है, लिखण नूं तुसीं लिख सकते हो इदां लिख लो कि द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वैक्टर a by a real number n becomes another vector na वैक्टर। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ a ਨੂੰ n ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ तो साढ़े को तुसीं ऐ ला लो n into a is equal to na वैक्टर। सो ये अपने को पहला ब्रैकेट विच लिखा होया सी अलग वैक्टर होने ही इकट्ठी एक क्वांटिटी बन गई। उदा ही माइनस वाले भी लिख सकते जो आप 2 लिखा, n जिहड़ा आ वो आप जनरलाइज कर दिता हुण, ठीक है। ये बस इन्ना की करना तुसीं, ठीक है। सो अगे आपां गल करते हैं रिजल्टेंट वैक्टर की। हुण रिजल्टेंट वैक्टर एक टर्म हुंदी है, ठीक है। इत्थों अपना जिहड़ा है इंटरस्टिंग मैथमैटिक्स इहदा स्टार्ट हो जाना, ठीक है।
रिजल्टेंट वैक्टर, रिजल्टेंट स्पेलिंग देख लो कि भाई RESULT द्वारा पढ़ने, एक मिनट, रिजल्ट पाके रिजल्टेंट वैक्टर। सो जेड़ा रिजल्टेंट वैक्टर है बेटा ये की है, हुण रिजल्टेंट मीनस जेड़ा रिजल्ट है वैक्टर, इहदे च की है, इहदे च जिहड़ी चीज़ आपां सिखनी है दैट इज़ है वैक्टर कंबीनेशन, जां ऐ कह लो कंबीनेशन ऑफ वैक्टर्स, 2 और मोर वैक्टर्स। मान लो कि मेरे कोल कोई वैक्टर ए है, ठीक है, इदां ला लो ए वैक्टर, ठीक है, प्लस मैं बी वैक्टर करना, हुण दोने वैक्टर मैं जोड़ने हैं तो ये की बनू, सेम डायरैक्शन च जाते पे है तां, सो इन्हां दा जोड़ के की बन जूगा एक वड्डा वैक्टर, ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर। सो ये मेरे को की बन जूगा ए प्लस बी, ठीक है। इदां ही जे मैं करना होवे आ ए वैक्टर ते बी वैक्टर छोटा जिहा बना लेने, चलो बट ओपोजिट डायरैक्शन च, ठीक है। सो ये मेरे को की हो जो मैं प्लस करूँगा, हुण ए प्लस बी किया बट बी की डायरैक्शन उल्ट है, सो अपने को की बन जूगा आ मेरे को इधर डायरैक्शन है, तुसी ऐ कह लो इनू आप बनाने ही है, पहला ए वैक्टर बना लिया फिर उहदे चों इन्ना कट दिता, सो आ कट्टिया जाऊगा, जिहड़ा आ वैक्टर रह जाऊगा ये तो इन्नी डायरैक्शन ही रह गई, सो अपने को आंसर आ जाऊगा इन्नी जिहड़ी आ मगरली वैल्यू आ ए वाले वैक्टर, पर डायरैक्शन क्यों, क्योंकि इधर नूं ज़्यादा सी इधर घट सी, सो ये अपने को बन गया ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर। आप प्लस ही किया सी बट डायरैक्शन उल्ट करके माइनस विच आ गया, डन। सो हुण की है, आ एक वैक्टर सी आ दूजा वैक्टर सी, इन्हां दोनों का कंबीनेशन दिस वाज रिजल्टेंट वैक्टर। आ मेरे को एक वैक्टर है ए, आ सैकेंड वैक्टर है, इन्हां दोनों का कंबीनेशन ए बनया, दिस इज रिजल्टेंट वैक्टर, ठीक है। सो तुसीं इहनूं इदां समझ सकते हो, द रिजल्टेंट वैक्टर ऑफ 2 और मोर वैक्टर्स इज डिफाइंड एज दैट सिंगल वैक्टर विच प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट, ठीक है। आपां ये अपने कोल की है, कोई एक सिंगल वैक्टर है जिहड़ा बाकी दो वैक्टरां दा इफेक्ट जिहड़ा आ इकट्ठा करके आपां नूं दर्शा दे, ठीक है। हुण ये तो सिंपल सीगा, तुहाडे कोल स्ट्रेट लाइन दे केस सी, हुण थोड़ा जिहा होर थोड़ा जिहा टिपिकल करते हैं, क्योंकि हुण आपां मोशन इन्हें प्लेन चैप्टर कर रहे हैं, आपां लीनियर दे विच चल ही नहीं रहे। सो मान लो मेरे को आ एक वैक्टर है, ऐ करो एवें पूरी सॉरी पूरी वर्टिकल लाइन बनानी है, इतने मेरे तो बनती ही नहीं की, चलो संभव। सो आ मेरे को एक वैक्टर ला लो ए, डन, आ हो गया बी वैक्टर, हुण 90 डिग्री हो गए, ठीक है। सो इन्हां दा रिजल्टेंट वैक्टर की होगा, तुसी देखो एक डायरैक्शन ए है एक डायरैक्शन ए है, मान लो दोनों इक्वल ही मान लो मैगनीट्यूड च, वैसे आ थोड़ा वड्डा बन गया पर मान लो इक्वल है। सो इन्हां दा रिजल्टेंट की होगा, जे कोई चीज़ है जिन्होंने दोने खिंची जाते हैं, मान लो एक बंदा इत्थे भी पहुँच गया, इत्थे पहुँच गया, फिर फड़िया होया तो चीज़ कित्थे लाई करूगी, विचाले जे। सो ये जे आप ट्रेस करांगे तो इहदा रिजल्टेंट जिहड़ा आ इधर नूं बनना। सो ए वैक्टर जिहड़ा होगा वो होगा अपने कोल ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर, ठीक है। इनू आप रिप्रजेंट कर सकते हैं वैक्टर आर दे नाल, डन। डेफिनेशन दोबारा सुन लो, लिख लियो, द रिजल्टेंट वैक्टर ऑफ 2 और मोर वैक्टर्स इज डिफाइंड एज दैट सिंगल वैक्टर which produces the same effect as it produces the same effect as is produced by the individual vectors together, ठीक है। It is to be noted that the nature of the resultant vector is the same as that of given vectors, ठीक है। सो हुण आपां जिहड़ा मेजर चीज़ करनी है दैट इज़ है अपने कोल एडिशन ऑफ वैक्टर्स, एडिशन
ऑफ वैक्टर्स। बेटा ये जिहड़ी चीज़ आ इहदे च आपां बहुत कंसाइज होके चलांगे, तो जे कंसाइज होके चलांगे तो कन्फ्यूजन नहीं होएगी। सो इनू बड़े ध्यान नाल तुसीं देखना ते मैथड ने अपने कोल वो आपां करने हैं। एडिशन हैडिंग लिख लेना, एडिशन ऑफ वैक्टर्स, क्योंकि जिहड़े ये मैथड ने इन्हां मैथड्स ने ही तुहाडी जिहड़ी न्यूमेरिकल करन दी कैपेबिलिटी है वो वधाउणी है। ठीक है, सो एडिशन ऑफ वैक्टर्स दे विच बेटा मसला की है, असी साडे कोल दो वैक्टर्स दिते हैं। ठीक है, कोई असी इन्हां दोनों नू ऐड करना है, प्लस करना है। ठीक है, तो साडे कोल कोई रिजल्टेंट वैक्टर आ जाऊगा। आ कोई ए वैक्टर आ, कोई बी वैक्टर है, तो आ कोई मेरे कोल रिजल्टेंट वैक्टर बन जाऊगा। सो हुण आपां रिजल्टेंट वैक्टर बनाउणा, जे तो सीधे दिते है सिंपल जिद्दां आह हॉरिजॉन्टल वैक्टर्स है, इहदे विच आपां नूं सौखा हो जांदा। जे 90 ते है तां भी सौखा हो जाता। बट जे वैक्टर दो होण, दो तो ज़्यादा होण ते दो एंगल जिहड़े दो वैक्टर आ वो अपने कोल किसी एंगल दे उत्ते होण, फिर उन्हां दा रिजल्टेंट किद्दां कढांगे आपां, उन्हां दा रिजल्टेंट किद्दां कढांगे, उहदे लई असीं थ्योरम्स करांगे। ठीक है, जिहड़ियां वो थ्योरम्स ने वो मैं तुहानूं दस दिना है की है। नंबर 1 है अपने कोल ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दूजी है अपने कोल पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बस ये तुसी अपने टिप्स से कर लेना, लॉजिक प्लस मैथड, दो चीज़ां ये तुसी याद रखनी है, लॉजिक प्लस मैथड। ठीक है, सो कदे भी अपनी जिंदगी च किते भी मार नहीं खाओगे। सो सब तो पहला तो आपां रिजल्टेंट लिखण वाल ही होने आ भी मान लो कोई अपने कोल एंगल जिहड़े आ कोई दो ग्राफ अपने कोल दो वैक्टर्स ने, ए वैक्टर ते बी वैक्टर, ये हुण किसी एंगल ते होणगे। जे इन्हां नूं कंबाइन करना आपां इदां करदे आ, जदों भी वैक्टर कंबाइन करने आ तुसीं ये ख्याल रखना है भी इन्हां नूं जदों जोड़ना ना आपां वो टेल तो जोड़ के देखना। ठीक है, तो इस हिसाब नाल आपां देखना भी आपां इन्हां दा कम्यूलेटिव इफैक्ट जोड़ देखना, मतलब जदों ये इकट्ठे हुंदे आ ते ये की इफैक्ट करदे आ। तो तुसीं इस हिसाब नाल करना कि जिहड़ा वैक्टर तुसीं पहलां लिख रहे हो उहनूं तुसीं अगे रखना। फॉर एग्जाम्पल आ मेरे कोल ए वैक्टर है, सो बी वैक्टर हुण कोई इत्थे भी जोड़ सकदा। ठीक है, कोई इत्थे भी जोड़ सकदा, ए वैक्टर नूं इत्थे भी रख सकते हैं, इत्थे भी रख सकते हैं, थल्ले भी रख सकते हैं। आपां लॉजिक देखना भी लॉजिक कित्थे सही पैंदा। ठीक है, जे हुण आपां अपने हिसाब दे नाल देखिए तो जे मेरे कोल आ वाला ए वैक्टर है, तुसीं अपनी बुक च देख लिओ, जो भी जिद्दां दित्ता उहनूं उदां ही फॉलो करिओ, बट लॉजिक समझ लो। अगर आ ए वैक्टर है तो मेरा लॉजिक की है, लॉजिक मतलब एक्सप्रैशन, मैं की एक्सप्रैशन लिख रहा ए प्लस बी। अगर मैं ए प्लस बी लिख रहा दैन आई शुड राइट ए फर्स्ट, दैन मैं देखना भी बी हुण आपां इदों अगे तोरना। इत्थों स्टार्ट होया सी काम इस पॉइंट तो, जदों ये इस पॉइंट ते पहुंचा तो ए वैक्टर पूरा हो गया। हुण आपां इहदे च प्लस कर रहे हैं बी वैक्टर, इट मीनस कि जिहड़ा आ वाला पॉइंट होऊगा इहदा एंड पॉइंट जिहड़ा इहदा टिप वाला पॉइंट है ये दूजे वैक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट बनूगा। वट इट मीनस कि आ बी वैक्टर है, इहनूं जिउंदा त्यों चक के मैं इत्थे रख दूंगा, इहनूं मैं इत्थे रख दिता। सो आ ए वैक्टर बन गया, आ बी वैक्टर बन गया। ठीक है, सो ए की बन गया ए प्लस बी। हुण रिजल्टेंट वैक्टर की होगा, इहदा एडिशन की करांगे। मीनस जे एक मान लो भी दो दोस्त ने, एक दोस्त इत्थों निकलिया, वो कहंदा तू मेरे मोशन नूं ना पूरा मॉनीटर करना भी मैं कित्थे पहुंचदा। तो एक दोस्त जिहड़ा इत्थे खड़ा वो नोटिस कर रहा भी पहला दोस्त जिहड़ा आ एक नंबर खड़ा, दूजा दोस्त जिहड़ा पहला इत्थे पहुंच गया, फिर वो दूजा दोस्त इत्थे पहुंच गया। बट
जे आप दोस्त देखूगा दूजे दोस्त नूं तां दूजा दोस्त इत्थे दिखूगा। आपां की करना है, एक लाइन मिला देनी, इनिशियल पॉइंट तो फाइनल पॉइंट ते लाइन मिला देनी। जिहड़ी आ स्ट्रेट लाइन आपां मिलाई है, इस स्ट्रेट लाइन नूं तुसीं इत्थों इधर नूं ही एरो टिप देना। सो जिहड़ी आ स्ट्रेट लाइन बन गई ना, जिहनूं आपां पहलां डॉटेड बनाया सी, हुण आपां सॉलिड करता, ये बन गई मेरे कोल आर वैक्टर एंड दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट। ठीक है, सो आपां आ चीज़ जिहड़ी है ये फॉलो करनी। ठीक है जी, समझ गए। हुण आ मेरे को एक ट्रायंगल बन गई ना एक तरह की। सो जे ट्रायंगल बन गई तो आप इहदे तो लिख सकते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन। तुसीं लिख लो कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वैक्टर्स स्टेट्स दैट, ट्रायंगल लॉ ऑफ वैक्टर्स स्टेट्स दैट कि इफ two vectors acting on a particle at the same time are represented in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in one order, their resultant vector is represented in magnitude and directed by the third side of the triangle taken in opposite order। मतलब की बनया इहदा सीधे सीधे लफ्ज़ां दे विच, अगर मेरे को दो वैक्टर जिदा ए वैक्टर ते बी वैक्टर ने कोई, यह ट्रायंगल दियां दो साइडां दे वांगू एक्ट कर रहे हैं, तो जेड़ा तीजा वैक्टर होगा, जेड़ा अपने को रिजल्टेंट वैक्टर होवे इन्हां दा, उन्हां दो पॉइंट्स नूं जोड़ के, एंड पॉइंट्स नूं जोड़ के, जिवें ए दा इनिशियल पॉइंट ते बी दा फाइनल पॉइंट, इन्हां नूं जोड़ के जिहड़ी ट्रायंगल दी थर्ड लाइन बनदी है, उस लाइन नूं आपां रिजल्टेंट वैक्टर लिखना है। ये कहता ट्रायंगल। दोबारा सुन लो, अगर मेरे को दो वैक्टर ट्रायंगल दियां दो साइडां ते रख दिते जाते हैं, तो जेड़ा रिजल्टेंट वैक्टर आ उस ट्रायंगल की थर्ड साइड बन जाऊगा। सो इट मीनस जे मेरे को आ वैक्टर आ, ठीक है, ए वैक्टर, सो सॉरी ए वैक्टर आप थले लेने, ए वैक्टर बी वैक्टर। सो हुण इत्थों स्टार्ट होया तो रिजल्टेंट की होगा, बना मैं पुट्ठा लेना, बट डायरेक्टेड टुवर्ड दी फाइनल पोजीशन, सो इनिशियल पॉइंट तो। सो आ जी थर्ड साइड ट्रायंगल दी ये अपने को रिजल्टेंट बन जाएगी। दिस इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन। ठीक है, मेरे ख्याल नाल समझ आ गई होनी चाहिए है। इदां ही अपने को पैरेललोग्राम लॉ भी हुंदा है। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ दे विच की फंडा हुंदा, उहदे विच जस्ट ट्रायंगल तो ही एक चीज़ बनती है, जिद्दां मान लो भी आह दो वैक्टर्स ने, है ना, आही केस ला लो। सो पहला ए वैक्टर बना लिया, फिर आप बना लिया बी वैक्टर। सो हुण इन्हां दा रिजल्टेंट जिहड़ा होऊगा इस पॉइंट तो आप बना लैंदे, तो वो कहंदे भी जे मेरे को आ ए वैक्टर है, ये मेरे को बी वैक्टर है, तो तुसी एक पैरेललोग्राम दियां साइड्स इन्हां नूं सपोज कर लो। आप सपोज कर लिया कि दीज आर टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की हुंदी है, जिहदे विच ए दे पैरेलल भी एक लाइन होगी, डॉटेड बना लिया आप, ठीक है, बी दे पैरेलल भी एक लाइन होगी। सो आ मेरे को पैरेललोग्राम बन गई। हुण देखो इनिशियल पॉइंट सेम रखना है, डायरेक्शन ऐ ही जानी है, जिद्दां ए इधर नूं जांदा है, ए भी ऐ नूं जा रहा। सो आ मेरे को पैरेललोग्राम बन गई। हुण इहदा रिजल्टेंट कित्थे आऊगा, वो कहंदे इहदा रिजल्टेंट जिहड़ा इहदा डायगनल होऊगा ना, ये रिप्रजेंट करूगा। ठीक है, सो जे देखा जाए ध्यान नाल तो अपने को आही चीज़ बन जाती है। ठीक है, सो इहनूं तुसीं लिख सकते हो डेफिनेशन किदां, इट स्टेट्स दैट मीन्स पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन स्टेट्स दैट इफ टू वैक्टर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एट द सेम टाइम आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, इत्थे दो वैक्टर जिहड़े आ दो एडजेसेंट साइड्स दे नाल आपां रिप्रेजेंट कर रहे हैं, then their resultant vector is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram। ठीक है, सो जो इनका रिजल्टेंट वैक्टर आ अपने को इहदे थ्रू जाऊगा। सो ये दो अपने को हो गई डन। ठीक है ना, सो हुण तीजी चीज़ एक बड़ी इंटरस्टिंग आप देख लैंदे आ, उहदा आप एनालिटिकल मैथड का नहीं करांगे, पर फिर भी एक चीज़ समझांगे, उहदे नाल तुहानूं बेसिक ही सारा क्लीयर रहिंदा हो जाऊगा। आप दो तो वध नंबर ऑफ वैक्टर्स लैके चलते हैं। ठीक है, आ चीज़ां याद रखियो। हुण मान लो भी मेरे को कोई वैक्टर है ए वैक्टर,
फिर बी वैक्टर, फिर मेरे को हैगा सी वैक्टर, फिर मेरे को हैगा डी वैक्टर। ठीक है, ए बी सी ते डी। टाइम देख ले कितना हो गया, 30 मिनट होया। चलो आ करके आप स्टॉप ला देंगे, फिर नैक्सट लैक्चर देखेंगे। हुण जे तुहानूं कहा जाए कि इत्थे अपने कोल 4 वैक्टर ने, डिफरेंट डायरैक्शनस ने, तो आप रिजल्टेंट देखने आ, चारों का रिजल्टेंट देखिए की बनूगा। तुसी की करोगे? यस, अपने दिमाग च पहली चीज़ यही होनी चाहिए है कि असी की करांगे, ए वैक्टर बनाया, बिल्कुल इनू इहदे ते चक के लिया के रखता। आई शुड यूज़ वन नोट हेयर, वन नोट के लाइनां चक के सीधियां रख लें। सो इत्थे मैं सी बनाता। ठीक है, उन्ना की फिर मैं इत्थों डी का जो टेल पॉइंट आ इहदे टिप ते रखता। इदां ही जोड़ने हैं वैक्टर, समझ आ गई ना गल। सो जे मैं इदां जोड़ते, हुण देखो आ वैक्टर मेरे तो वड्डा बन गया, चलो आप इहनूं छोटा रख लैंदे। सो हुण की है जिहड़ा रिजल्टेंट होऊगा, की कहंदे आपां नूं, अगर आ अपना इनिशियल पॉइंट है, ए वैक्टर बी वैक्टर मैं जोड़ता, इदां ही आपां हरेक दी टेल लास्ट वाले दी टिप ते जोड़ी जानी है। ठीक है, डी वैक्टर। सो जिहड़ा इन्हां दा रिजल्टेंट होऊगा दैट विल बी की ट्रायंगल च की कीता सी, इनिशियल पॉइंट तो फाइनल पॉइंट ते एरो बना दो। वन लाइन, सैकेंड, थर्ड, फोर्थ ते आ फिफ्थ लाइन बन गई, बट फिफ्थ लाइन का एरो जिहड़ा ओह ओपोजिट सीधा टिप ते जाके मैच करता। सो जिहड़ा ये वाला वैक्टर आ अपने कोल, इहनूं असीं रिप्रजेंट करांगे, इहनूं आपां कहांगे दिस इज रिजल्टेंट वैक्टर। ठीक है, हुण देखो, हुण जे मैं लिखना होवे, ये आर वैक्टर कादे बराबर है? आर वैक्टर की है? ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर प्लस डी वैक्टर। जे तुहानूं कहा जाए भी इन्हां दोनों वैक्टर्स का जोड़ करो, फिर की होगा? रिजल्टेंट कित्थे बनूगा? रिजल्टेंट बनूगा जी इत्थे ए प्लस बी वैक्टर का। ठीक है, सो आ अपने कोल ए प्लस बी वैक्टर बन जू, इत्थे ऐ लिख लो। अगर तुहानूं सी भी ऐड करन नूं कह लिया जाए, इत्थे तक रिजल्टेंट कड्डो, फिर तुसीं की करोगे? तुसीं चुप करके आ लाइन मैच कर दोगे। ये अपने कोल की बन जू? ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर। सो फंडा की है कि जदों भी रिजल्टेंट कड्ढना आ, तुसीं इनिशियल पॉइंट तो जिथे तक तुहाडे वैक्टर जोड़ के पहुंचे आ, लास्ट वैक्टर की टिप आ, उत्थे तुसीं एक लाइन बना देनी। ठीक है, इनू तुसीं कह लो भी ये ड्रा करके करने वाला मैथड कह लो, ग्राफिकल मैथड कह लो। सो आपां इदां वैक्टर एडिशन करते हैं। सो मेरे ख्याल नाल तुहानूं समझ आ गई होनी चाहिए है हले तक। ठीक है, सो इस तो बाद हुण आपां एनालिटिकल मैथड करांगे वैक्टर एडिशनस दे लई। उहदे च की करांगे असी? सिंपली दो ही चीज़ां करनियां आ, एक आ ट्रायंगुलर ला, ठीक है, दूजा असी करना हैगा पैरेललोग्राम ला। इन्हां दोनों नूं असी एनालाइज करांगे ते आर दे मैगनीट्यूड दी, ठीक है, वैल्यू लिखांगे ते नाल जिहड़ी आर दी डायरैक्शन भी लिखांगे आपां। सो ये दोनों चीज़ां दे वर्कआउट करांगे। फिर इस तो बाद तुहाडे न्यूमेरिकल्स का काम नाल दी नाल स्टार्ट करांगे। वावा सारे न्यूमेरिकल्स करने आ, उस तो बाद आपां अगे चलांगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय। इहदे च कोई डाउट होवे बेटा मैनूं पुछ लेना ते इहनूं चंगी तरह तुसीं देखना आ। सो प्लीज़ डोंट मिस दीज लैक्चर्स, इन्हां नूं तुसीं चंगी तरह कर लो। डन? ओके बाय, गुड नाइट।